Keynesian approach. Now, after 1929, where in 1929 Great Depression, the Keynes came. At that time, the Roosevelt were president of America, and they invite Keynes to study the economy problem and find the solution for that Great Depression. And Keynes came, and he studied the whole economy and find that O equal to Y. But Y not equal to C, and therefore there is a formation of inventories and a stock, which is a big cause of Great Depression, and therefore they enforce government to interfere into government activities and to bridge up the gap between demand and supply, and then after only full employment equilibrium situation can be achieved. Thus, Keynes said that AS aggregate supply और AD जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने जिस AD और AS को उन्होंने इक्विलिब्रियम पॉइंट माना था, यहाँ पर केन्स ने क्या किया कि AD और AS का जो पहला इक्विलिब्रियम था क्लासिकल इक्विलिब्रियम, उसको उन्होंने AD को ADU करार दिया, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो एग्रीगेट डिमांड जो है, ये एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे नहीं था अकॉर्डिंग टू केन्स। उन्होंने कहा कि अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे होता तो मंदी आती ही नहीं, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। एडी यहाँ पर एडीयू है क्योंकि यहाँ पर पूरी वस्तुएं नहीं बिक पाती हैं। देयर वर सम अनसोल्ड गुड्स इन मार्केट एंड दे क्रिएट इन्वेंट्री, और इसलिए उन्होंने इसको एडीयू और एएस कहा, और इनके बीच जो इक्विलिब्रियम है, जो इसको क्लासिकल ने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा था, इसको इन्होंने कहा ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। और देन जब केन्स से पूछा गया कि तो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि इसी एग्रीगेट सप्लाई लेवल पे जितना एग्रीगेट डिमांड कम है, उस एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए उसी सप्लाई लेवल पे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए, और तब उन्होंने एडीएफ, एक दूसरा एग्रीगेट डिमांड एडीएफ जो कि एडीयू से ऊपर था, इसको खींचा, और यहां पर जब इक्विलिब्रियम हुआ तो इसको इन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा, एडीएफ और एएस। और ये जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की बात कही, उन्होंने कहा कि ये एग्रीगेट डिमांड कौन बढ़ाएगा? गवर्नमेंट। यानी दैट द गैप विच इज अराइज बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इन क्लासिकल इकोनॉमी, that gap should be bridged up by government expenditure. It is a state by Keynes itself that the unsold commodity in market, that inventory which is not going to be sold out in market on the market price, because people were withdrawal some monetary income from their income for transaction motive, precautionary motive and speculative motive, and in terms of that amount the commodity were unsold in market, and therefore they create inventories, and due to this inventories and stock the Great Depression came. So if an economy have to be prevent their economy from Great Depression, that demand should be bridge up, and that demand should be sold, that stock or inventory should be sold on market price, that the factories were going to be open daily, the employment level should be maintained. And who purchased that commodity, that unsold commodity? So Keynes said that government should interfere in that situation, and government have to be purchase that unsold commodity, and they have to be work for general people's public activities like formation of a school, college, bridges, park, national museum, etc. And then only there is an equality between aggregate demand and aggregate supply. It means that Keynesian theory enforce that we have to be uplift the demand level on that particular supply level. हमको मांग का जो स्तर है वो बढ़ाना पड़ेगा, और वो बढ़ाने का काम पब्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक को जितना मांगना था उन्होंने मांग लिया। और एक्स एंटे पे अगर हम रहते हैं तो यहाँ पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने एक्स एंटे यानी पूर्व में ही मान लिया कि जितना उत्पादन हुआ उतना आय होगा, उतना खर्च होगा, और पूर्ण रोजगार की अवधारणा को पाल लिया। लेकिन केन्स कहते हैं कि यह अवधारणा गलत थी, और इस गलत अवधारणा के कारण ग्रेट डिप्रेशन आया, और कुछ वस्तुएं अनसोल्ड रह जाती हैं, और जिसके कारण बाद में इन्वेंट्री और स्टॉक क्रिएट होने के कारण मंदी आई। इसलिए हमको उसी सप्लाई स्तर पर मांग के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा पूर्ण रोजगार के स्तर तक, और ये
ये काम जो है ये गवर्नमेंट परचेज करेगा, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से होगा. गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू रिमेन द इकोनॉमी इन फुल एम्प्लॉयमेंट equilibrium situation. Therefore, the government have to be purchase the commodity goods and services from different sectors to maintain the level of aggregate demand, which should match the aggregate supply level, and therefore the full employment equilibrium can be achieved. तो केन्सियन अप्रोच में क्लासिकल अप्रोच के इक्विलिब्रियम को अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का करार दिया गया और केन्स ने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए एडीएफ की अवधारणा को स्वीकार किया. द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, उसको कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट माना. अब हम बात करते हैं मॉडर्न की. मॉडर्न ने कहा कि जो ओवर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैन बी अंडरस्टैंड बाय केन्सियन अप्रोच, full employment equilibrium understand by classical approach, under employment equilibrium and full employment equilibrium both were understand by Keynesian approach, and now we turn on over employment equilibrium, which is understand by modern concept. That is modern. The third is modern concept. ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट को तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मान ही लिया, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो कि एडीयू पे होता है. केन्स के एडीएफ को डिफ्लेशनरी गैप कह दिया, यानी कि यहाँ पर मांग में उतनी कमी है, यानी एडी और एएफ के बीच जो केन्स का इनका क्लासिकल इकोनॉमिक्स के एडीयू है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, केन्स का एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और इनके बीच का जो गैप है इसको केन्स ने डिफ्लेशनरी गैप कहा. डिफ्लेशनरी गैप मीन्स कि डिफ्लेशनरी गैप refers that gap between aggregate demand and aggregate supply which is needed to remain the economy in full employment situation. तो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के लिए डिमांड का जो लेवल होना चाहिए एडीएफ होना चाहिए, और अभी क्लासिकल में एडीयू, तो एडीएफ और एडीयू के बीच का गैप जो है वो डिफ्लेशनरी गैप है, यानी मांग की न्यूनता को दिखाता है, यानी डिमांड में इतनी कमी है पूर्ण रोजगार के स्तर से. डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स दैट गैप विच इज इंडिकेट द difference between demand level which is needed for attain full employment equilibrium and which actually present. तो इस गैप को डिफ्लेशनरी गैप यानी मंदी पूर्ण रोजगार से पूर्व की अवधारणा है. इट इज अ कॉन्सेप्ट. जो डिफ्लेशन है दैट वुड नेवर केम बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन. तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले की जो मांग की न्यूनता होती है उसे हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं. एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गया, उसके बाद अगर डिमांड बढ़ता है एडीएफ, तो आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट जो डिमांड एडीएफ और एडीएफ 1 के बीच जो गैप है उसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं. यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक्स लोग यहाँ पर इस बात को बताते हैं कि मुद्रास्फीति जो है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति इज इन्फ्लेशन इज अ जनरल फेनोमेनन इन विच the price of goods were going to be raised. वस्तुओं का कीमत बढ़ जाता है due to unavailability and no supply of goods. तो ये कब होगा? वस्तुओं का मांग कब बढ़ेगा? जब फर्दर रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के लिए नहीं रहेंगे. यानी ये सिंपल सी बात है कि आपके घर से भूखा कोई कब जाएगा? जब आपके घर में अनाज का एक भी दाना नहीं रहेगा तो ही कोई भूखा जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है, खाना बन गया, सभी कोई खा लिए, लेकिन फिर भी 4 आदमी आ गए तो अनाज है, खाना बनेगा, वो लोग खा के जाएंगे. लेकिन अगर अनाज ही समाप्त हो जाए तो वो उनको भूखा ही जाना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना है कि मुद्रास्फीति जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का कीमत बढ़ता है, तो वो मुद्रास्फीति कब आएगी? वो मुद्रास्फीति तभी आएगी जब फर्दर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे एंड ऑल रिसोर्सेज वर एग्जॉस्टेड in production activities and further there were no resources available for next production or further production. Then after जो अगर डिमांड बढ़ता है तो वस्तुओं का कीमत बढ़ेगा. तो
inflation is a situation which is arise after full employment. मुद्रास्फीति जब भी आएगी पूर्ण रोजगार के बाद ही आएगी. इन्फ्लेशन नेवर कैन बिकम बिफोर फुल एम्प्लॉय. हम लोग अभी भारत में हमेशा बात करते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति है, महंगाई है, तो क्या भारत पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर चुका है एंड देन आफ्टर ये महंगाई है? नहीं, यहाँ पे अभी रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज नहीं हुए, इसलिए यहाँ महंगाई है. हाँ, वो सिचुएशन तब आएगा जब रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज हो जाएंगे. जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है, एक्चुअल इन्फ्लेशन अराइज ओनली व्हेन there were no further resources to use and all types of resources were fully exhausted in production activities. Therefore, if demands were in increase of goods, then there were only one way, that their prices were going to be high because no further resources. So inflationary situation is a situation which is arise post full employment situation. Inflationary situation is post full employment situation and inflationary situation is pre full employment situation. That is the concept. यानी मंदी जो है वो पूर्ण रोजगार के पहले की अवस्था है और तेजी यानी मुद्रास्फीति जो है वो पूर्ण रोजगार के बाद की अवस्था है. अगर पूर्ण रोजगार के बाद अगर डिमांड में वृद्धि होती है तो मंदी आएगी और पूर्ण रोजगार से पहले जो मांग का लेवल है और पूर्ण रोजगार के मांग के लेवल के अंतर को हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं. यू ऑल रिक्वेस्टेड टू मेक योर नोट्स इन दिस फॉर्म. तीनों थ्योरी को अलग अलग लिख करके आपको बढ़िया से नोट्स बनाना है. ऐसे तो नोट्स भेजा भी जा चुका है और इसको आप याद करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर this notes and also remember, stay home safe.